Hello everyone, I am Shaurya. I don't know how much this video is going to help people out there, but yeah, this video is very informative for me, and even this is very important for me for my psychology. And yeah, I means I can say you that people struggling with psychology, like psychological things and trading, will definitely get uh, benefit with this. So let's move into our screen first. So today is 13th of November 2025. I took a challenge for 3 months of trading. Like if I get 3 months of continuous, like if I am able to pass one demo account, like not uh, doing any stuffs like violating rules of those rules that are basically uh, made by funding pips and instant fundings and all the profits. Like if I am able to pass that, then I'll be moving into funding pips. Okay, so I took the trade of GBP JPY today. So here was the psychological twist and psychology I lacked. So first is the thing is previous day highs and lows, everything was there, like, and even I saw the movement in which price swept the liquidity of the previous session highs. So now what I did was actually this. So this is liquidity sweep, liquidity zone, and price went up, and then I waited for break of structure. Like this is break of structure, it gave break of structure, then it went up to the fair value gap zone. I waited for the fair value gap zone to be there. Now what I did is I entered earlier, then I saw price moving upward. I thought it would take the liquidity and liquidate me, but the twist was no, it was taking the further fair value gaps. And with that psychological things, I took 0.7 lots in the GBP JPY uh, forex pairs, and I got a loss of $15 at that point of time, because I just took the trade here and exited here. I sold. I took a short just because of my psychology that I'm gonna lose that $50 once again. I just um, lost $15 there. Next, what I did is I risked 3% of my account, not 3%, yeah, 3%, keeping myself far up, like here. So I did that just for, जैसे कि मुझे लगा था कि अगर ये ट्रेड या तो आज ही होता, या तो आर होगा या तो पार होगा, या तो $150 का प्रॉफिट होगा या तो $150 का लॉस होगा, ये सोच करके मैंने ट्रेड ले लिया. आई टुक द ट्रेड हियर, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, इस जगह पे बेसिकली, ठीक है, इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया था. एंड प्राइस अगेन स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड, देन आई थॉट लेट इट मूव, लेट इट मूव. उसके बाद प्राइस ने रिवर्सल दिया. आई टारगेटेड द नियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप्स. You can see this fair value gap is taken, but this fair value gap was not taken properly. So I waited for the this fair value gap to be taken. तो मैंने ऐसा किया, मैंने बोला कि इस fair value gap को लेने देते हैं, that would be my target. So मैंने इस fair value gap को लेने दिया, मैंने target complete किया. And you can see in the screen कि मैंने 49 और $50 का प्रॉफिट ऑलमोस्ट बना रखा था. But then what I did, I took the take profit, and then price went up. I thought कि मुझे लगा कि मुझे अब ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि वो ऊपर जा रहा है. फेयर वैल्यू गैप जोन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप है, इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप है, इस जगह पे है.
इस जगह पे है, इस जगह पे, तो मैंने इस जगह पे ट्रेड लिया, इस पर्टिकुलर एरिया पे, एंड देन प्राइस मूव्ड डाउन। मुझे लगा मेरी तरफ ही जा रही है, बट देन इट क्लिक्ड इन माई हेड दैट कि अगर मेरा टेक प्रॉफिट हो रखा है तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, रिवेंज ट्रेड, ग्रीडी ट्रेड, इम्पेशेंट ट्रेड मैंने सोचा नहीं लेने का है। मैंने कट ऑफ किया। उस टाइम पे मैंने $5 लॉस किया। सो द पोर्टफोलियो वॉज अराउंड ऑफ 40-20 डॉलर्स उधर लॉस किया मैंने, एंड अराउंड $49 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो मोटा मोटा मेरे पास $29 का प्रॉफिट रखा है एक दिन का, सिर्फ एक दिन। उससे पहले मैंने 4 दिन तक लूजिंग स्ट्रीक बना रखा है, ठीक है। मैंने 4 दिन तक लूजिंग स्ट्रीक बना रखा था, एंड उस 4 दिनों में मैं मतलब बहुत ही साइकोलॉजिकल एरर था मेरे में। जैसे कि कभी कभी क्या होता था कि जैसे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, मेरे दिमाग में क्लिक किया लिक्विडिटी स्वीप, ओके। मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या ध्यान दिया, मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिया 1 मिनट टाइम फ्रेम देख करके। बट हियर एक्चुअली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तुम देखना कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बेहतर रहेगा 1 मिनट के हिसाब से। सो यहाँ पे भी 3 मिनट, जैसे मैंने अभी जो आज का ट्रेड था GBP JPY 13 नवंबर 2025 का ट्रेड जो था, मैं जर्नल दे दूंगा, उधर का ट्रेड जो था वो बेटर था क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मिल चुका था। बट द मोस्ट ऑफ द टाइम आई टुक ट्रेड एट दैट पॉइंट ऑफ, जो 4 ट्रेड्स लिए मैंने, उसमें मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेक किया था सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने चेक किया, ओके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कूल। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप उस टाइम पे मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे देखो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, उसको इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हुआ, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विच इज़ इन 3 मिनट्स टाइम फ्रेम मैंने लिया था यहाँ पे। देन प्राइस को मैंने मूव करने दिया ऊपर, ठीक है, मैंने प्राइस को मूव करने दिया ऊपर। अब मेरी बेवकूफ़ी क्या थी, जैसे यहाँ पे देखो प्राइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट अगर तुम 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलते हो, देन यू कैन सी दैट दिस पर्टिकुलर जोन आउट हियर हैज़ दी फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे है ना फेयर वैल्यू गैप। तो मैंने एक हिसाब से क्या किया था, मैंने इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप लेकर के यहाँ पे ऐसे लगा रखा था मैंने। तो यहाँ पे मैंने 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप नहीं देखा मैंने जस्ट क्या किया, मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं गया, आई सॉ दिस, ठीक है, आई सॉ दिस। मैंने छोटा सा पहला फेयर वैल्यू गैप को एसएल बनाया, आई डेंट सी दिस, मैंने एसएल बहुत छोटा रखा था, ऊपर का फेयर वैल्यू गैप मैंने नोटिस ही नहीं किया। एंड देन प्राइस क्या हुआ, ऊपर गया, एसएल लिया मेरा, जैसे यहाँ पे एसएल लिया ले रखा है, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, यहाँ पे एसएल लिया उसने, एंड देन प्राइस वेंट टू माई टेक प्रॉफिट जोन। तो ऐसा एक बार हुआ था क्योंकि मैंने एसएल छोटा रखा था। तो उसके पीछे का क्या रीज़न था, उसके पीछे का सीधा साधारण से रीज़न था मेरा ग्रीड, लालच। मेरे में लालच था कि अगर मैं एसएल छोटा रखूँगा तो मैं लॉट साइज़ बड़ा खोल सकता हूँ। ऑब्वियस है, मेरा अगर एसएल छोटा है तो मैं लॉट साइज़ ऑब्वियसली बड़ा खोल सकता हूँ। बट अगर मेरा एसएल बड़ा रहा तो मैं लॉट साइज़ छोटा खोलूँगा, उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट भी छोटा होगा। तो उस हिसाब से मेरा जो ब्रेक इवन फेज़ में आने में बहुत टाइम लग जाएगा और मेरा लॉसेस भी हो सकता है। लॉस ज़्यादा हुआ तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। मैं उस रेफरेंस में लेकर के बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे फंडेड अकाउंट पास करना है, तो मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके फॉलो करने पड़ेंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है तो फंडेड अकाउंट से पहले मैं डेमो अकाउंट में ट्राई करूँगा ना कि मुझे हाँ रूल्स अब आ रही है समझ में, मैं रूल्स फॉलो कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज़ ऑल। तो मैंने एसएल वैसा रखा था, मैंने फेयर वैल्यू गैप नहीं चेक किया। अब तुम ही देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर भी है ना, बट प्राइस क्या किया, हल्का से ऊपर गया। इफ़ यू गो इनटू 3 मिनट्स टाइम फ्रेम, तुम यहाँ पे देखना, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है इस जगह पे, फेयर वैल्यू गैप है इस जगह पे, बॉडी फिल किया कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। बट विक कहाँ तक गया था, विक गया था यहाँ तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे रखता तो आज मेरा एसएल हो जाता, बट मैंने क्या किया, ऑलवेज आई केप्ट द एसएल जस्ट अबव दिस जोन विच इज़ लिक्विडिटी स्वीप का जो विक है उसके ऊपर रखा मैंने, ठीक है। तो मैंने उस जगह पे रखा है एंड देन प्राइस वेंट अप। उसका बॉडी देखना तुम, फेयर वैल्यू गैप में इस जगह पे फिल कर रहा है, बॉडी इसी जगह पे फिल है फेयर वैल्यू गैप में, देन वेंट डाउन, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न है मेरा एसएल अच्छा था, बढ़िया था, ठीक है। मेरा ट्रेड मैंने टाइम पे लिया था, मेरा एसएल बढ़िया था, ठीक है। एंड ये था। दूसरा मेरा था कि मेरा साइकोलॉजी बहुत बिगड़ा हुआ है इस पर, मेरा एसएल छोटा रखा था मैंने। नेक्स्ट था कि जैसे देखो इस जगह पे तुम चेक करना, मैं नियरेस्ट लिक्विडिटी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इस जगह पे नियरेस्ट लिक्विडिटी मैंने ट्रेड लेने की कोशिश की है, ये नियरेस्ट लिक्विडिटी है इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जोन पे देखो,
मैं दिखाता हूँ। इस जगह पे नियरेस्ट लिक्विडिटी लेने की कोशिश की, इस जगह पे नियरेस्ट लिक्विडिटी है अगर देखोगे तो सही से। तो इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया एंड देन प्राइस लिटरली यहाँ से मूव अप गया है, यहाँ से ऊपर गया है प्राइस, ठीक है, यहाँ से ऊपर प्राइस गया है। क्यों? क्योंकि ये नियरेस्ट लिक्विडिटी ही लेना था मुझे, बट मैंने क्या किया था, आई हैड ग्रीड इन माई माइंड। जो था एसएल वो था मेरा, उस टाइम पे भी ग्रीड था, एक बार ग्रीड आया, दूसरा बार जो ये था वो भी ग्रीड था। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वो मैंने यूरो यूएसडी में लिया था ट्रेड, या फिर हो सकता है जीपी यूएसडी में लिया था मैंने शायद। तो मैंने क्या किया, एसएल को एक्सटेंड करके आई एक्सटेंडेड इट टू दी थर्ड और सेकेंड लिक्विडिटी। तो उससे क्या हुआ ना, मेरा पहला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हार्म हुआ। 1:3 से ऊपर का लोगे तो थोड़ा रिस्की होता है, बट या अगर तुम्हारा ए प्लस स्ट्रैटेजी वगैरह वगैरह एक्सपीरियंस है तो तुम ले सकते हो। बट हियर आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक 1:3 1:2 लेना था। सो यहाँ पे मेरा परफेक्ट आ रहा है, बट उस टाइम पे मैंने क्या किया था ना, वो मैंने लेट ट्रेड किया था। तो वो लेट ट्रेड के कारण मुझे वो मैनेज करना था कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, 1:1 ना हो जाए, 1:2, इवन 1:1.5 भी होगा तो मुझे चलेगा। तो वो दिमाग में सेट था कि मुझे 1:1 नहीं लेना है। बट उस चक्कर में मेरा क्या हुआ, मुझे 1:1 ले लेता मैं तो अराउंड, अगर मैंने $50 का प्रॉफिट ये ले रखा था, $50 विच इज़ अराउंड 1% ऑफ माई अकाउंट, विच इज़ $5,000 का मैंने अकाउंट पास करने का ट्रेन कर रहा हूँ। तो अगर $50 उस टाइम पे मैं अगर प्रॉफिट ले लेता तो मेरा $50 का प्रॉफिट होता। आई वॉज मतलब मैं उस टाइम पे ब्रेक इवन फेज पे चले जाता। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरा साइकोलॉजी बहुत ख़राब था उस टाइम पे। ग्रीड, 2 बार मैंने ग्रीड के कारण हुआ। तीसरा बार इम्पेशेंस क्या था कि पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जगह पे मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा मैंने, और मैंने सीधा वहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, फेयर वैल्यू गैप में हिट किया, आई टुक द ट्रेड। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली होता है तुम्हारा नहीं ना के बराबर ही होता है। तुम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे, तुम्हारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड रहेगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने बहुत देखा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम नहीं करता है, जो कि तुम्हें दिमाग में फिट करना है, ठीक है। तो उस चक्कर में मैंने ट्रेड ले लिया, आई टुक द ट्रेड। तो फेयर वैल्यू गैप लिया, अब फेयर वैल्यू के साथ इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप ले लिया, मतलब उस टाइम पे मैं लिक्विडेट हो गया, लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मिला, फेयर वैल्यू गैप पे गया, वो फेयर वैल्यू गैप पे गया ना, उस टाइम पे वो फेयर वैल्यू गैप पे मैंने ट्रेड लिया, सोचा कि मैं ट्रेड ले लेता हूँ। बट फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बना दिया, और वहाँ पे वो जाकर के लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, मेरा ही लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, जिसको मैंने लिक्विडिटी स्वीप मान के रखा था। तो उस टाइम पे मैं लिक्विडेट हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर लैक ऑफ पेशेंस था। अब सेम वही ट्रेड लिक्विडिटी स्वीप जैसे होता है, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, टुक फेयर वैल्यू गैप एंड देन गोज टू माई डायरेक्शन। तो उससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट हैव पेशेंस इन ट्रेड, यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस ट्रेडिंग या फिर मार्केट वगैरह में सर्वाइव नहीं करोगे तुम। यू शुड हैव पेशेंस एंड यू शुड नॉट बी ग्रीडी। 2 चीज़। फोर्थ ट्रेड जो था, पहला जो ट्रेड था, सबसे पहला ट्रेड मेरा ये था। सेकंड ट्रेड भी शायद वो ग्रीड के कारण ही हुआ था, मैंने फेयर वैल्यू गैप पे नहीं लिया, नहीं ग्रीड के कारण नहीं हुआ था। सेकंड ट्रेड मेरा हुआ था जस्ट बिकॉज कि मैं श्योर नहीं था कि मुझे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। उस टाइम पे मैंने क्या किया, श्योर ना होने के कारण, वो भी इम्पेशेंस ही होता है, ग्रीड नहीं, वो भी इम्पेशेंस ही होता है, श्योर नहीं था मैं। तो उस टाइम पे मुझे पैसे से प्यार हो गया था, बिकॉज आई थॉट कि अरे भाई, मैं अगर आज प्रॉफिट कर लेता हूँ तो हो सकता है मैं आने वाले टाइम पे लाइक 3 मंथ्स के अंदर, मतलब अगले साल 2026 तक में, मैं फंडेड अकाउंट पे चले जाऊँगा, क्लियर कर लूँगा एंड ऑल, पैसे कमाने लग जाऊँगा, ये वो। बट वो क्या था, वो हुआ खुद को धोखा देना, ठीक है। अगर वो चीज़ तुम देखोगे तो वो हुआ तुम्हारे खुद को धोखा देना। क्यों? मुझे पैसे से उस टाइम पे प्यार हुआ, मैंने सोचा कि जल्दी करना है भाई, जल्दी करोगे जल्दी पैसा बनाओगे तो तुम चले जाओगे। तो भाई ये तुम्हारा एक स्कूल की एग्ज़ाम नहीं है कि तुम स्कूल की एग्ज़ाम में तुम नंबर्स दिखा दोगे टीचर को और तुम पास हो जाओगे एंड यू विल बी अपग्रेडेड टू न्यू क्लास। नो, दिस इज़ नॉट स्कूल, दिस इज़ मार्केट। तो उस टाइम पे तुम्हें
खुद को फेक सिंपैथी देने से बढ़िया है तुम खुद फेस करो उस चीज़ को कि हाँ तुम्हें पैसे से प्यार है, तुम्हें पैसे से लगाव है, तुम उस टाइम पे ट्रेड नहीं ले सके। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर पैसे का प्यार था, तुम्हारे अंदर था कि नहीं मुझे जल्दी करना है, ठीक है मुझे जल्दी करना है। तुम वो कन्फ्यूजन में रह गए और तुम उल्टा ट्रेड ले रखे, तुम लेट ट्रेड लिए। उस कारण से तुम्हारे ग्रीड पहले ग्रीड बढ़ा, क्योंकि तुम लेट ट्रेड लोगे तो तुमको मन करेगा कि 1:1 नहीं जाना है, या मुझे थोड़ा और लंबा प्रॉफिट लेना चाहिए फॉर कि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो। उससे तुम्हारा ग्रीड बना। पेशेंस तुम्हारे अंदर पेशेंस तुम्हारा हिट हुआ। क्यों पेशेंस तुम्हारा हिट क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ ना, तुम अपना कंफ्यूज थे, तुमने मूवमेंट होने के बाद ट्रेड लिया, हाफ मूवमेंट हो गया तब ट्रेड लिया। पेशेंस उस टाइम पे क्या खराबी हुआ पेशेंस में कि तुम्हें ट्रेड पहले लेना था, तुमने ट्रेड बाद में लिया। अब तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस के कारण तुम्हारा ग्रीड हिट हो रहा है, बार बार तुम्हें ग्रीड आ रहा है। नहीं, ग्रीड तुम्हारे अंदर पेशेंस का कमी होने लगा, उससे ग्रीड के साथ साथ पेशेंस का भी कमी होने लगा। उस कारण से ट्रेड खराब हुआ ना, उस कारण से तुम्हारा साइकोलॉजी खराब हुआ ना। वो तुम सॉरी ये गलती करोगे तो तुम्हें ग्रीड पेशेंस ये दोनों को ध्यान में रखते हुए देना है। फर्स्ट बी पेशेंस रखो ना अपने में। हाँ भाई नहीं कैप्चर करना, मान लो तुम ये समझो आज $50 तुम रिस्क करते हो, 5000 के अकाउंट में 1% रिस्क करते हो, तो 10 ट्रेड्स लोगे तुम। इट विल टेक 10 ट्रेड्स टू क्या किस लिए? तुम्हारा अकाउंट ब्लो करने के लिए 10 ट्रेड्स लगेंगे ना, नहीं लगेंगे, सीधा लगेंगे 10 ट्रेड्स। तो 10 ट्रेड्स तुम्हारा 10 दिन लगता है, 10 दिन। उसमें भी तुम क्या कर रहे हो, कभी मान लो $5 से बच जाओगे, कभी $10 से बच जाओगे, एट द एंड कुछ ना कुछ से बच ही जाओगे। उस मान लो 1-2 अकाउंट ब्लो भी कर ले, तुम डेमो में हो भाई, तुम्हारा वो पर्सनल अकाउंट नहीं ना है। अगर वो फंडिंग टिप्स का भी अकाउंट हो तो तुम्हारा 2-3 हज़ार का अकाउंट है, तुम 2-3 हज़ार रुपये लगा रहे हो तब तुम 5 लाख रुपए का ट्रेड कर पा रहे हो, है कि नहीं? ये चीज़ दिमाग में रखो ना, ये चीज़ दिमाग में रखो। तो बेसिकली ग्रीड किस बात का रखना और इम्पेशेंस किस बात का होना? जब तुम्हारे पास 10 चांसेस है लूज करने के, तुम्हारे पास 10 चांसेस है हारने के, ठीक है, तो तुम्हें क्यों अपने में रखना है नहीं मुझे नहीं हारना है? अरे भाई हारो। सेकंड, अगर तुम्हें देखो 10 बार हारने का है ना, 10 बार हारने का, सो 10 बार हारने से अच्छा मान लो कि तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये ट्रेड नहीं चलेगा, तुम्हें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लो उस दिन के लिए तुम्हें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप चलेगा, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप चलेगा। तुम कोशिश कर रहे हो किस चीज़ के लिए? तुम कोशिश कर रहे हो फॉर लिक्विडिटी स्वीप। तरह तरह के कॉन्फ्रेंसेस खुद में बना रहे हो, मार्केट तुम्हें कोई मूवमेंट नहीं दे रही है, मार्केट गोज ऑन इट्स फ्लो, तुम्हें उसमें से मूवमेंट पकड़ना है, तुम्हें पकड़ना है मार्केट बता क्या रही है, और तुम्हें उस टाइम पे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, मार्केट तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। तो मान लो उस दिन तुमको ट्रेड नहीं मिलता है तो इट इज़ बेटर ना, 1% हारने से बेहतर है तुम 1% बचा लो। तुम 10 दिन अगर लगातार हार रहे हो 1-1%, हर एक 4 बार, जैसे मैंने 4 बार लगातार हारा, मैं फॉर वॉट, किस लिए हारा? इम्पेशेंस ग्रीड दोनों किस लिए हुआ? मुझे लगा कि नहीं मैं कर लूँगा, पर भाई अगर तुमको मार्केट बता रही है कि मत घुसो उस टाइम पे या जल्दी निकाल लो पैसा, तो निकालो ना भाई। 1% हारने से बेहतर है तुम 1% मत हारो ना। तुम्हारे पास 1% हार गए, तुम 9% था तुम्हारा, 8% तुम हार चुके हो, ठीक है, 8% तुम लूज कर चुके हैं। अब तुम अगर 1% हार भी जाते हो, इफ़ यू लूज 1% तो तुम 9% में आ जाते हो। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम उस चीज़ को 1% नहीं हारते हो, हाँ तुम्हें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला उस टाइम पे, तो तुम अपने में फेक सिनेरियोस क्रिएट करने लगोगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाओगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए, ताकि तुम्हें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले, तुम वहाँ पे एंटर कर सके। तो उस टाइम पे तुम्हारा 8 से 9% हो जाएगा ना जी, तुम्हारा वहाँ पे तो 1% तो खराब हो गया ना। तुम्हारे पास एक बॉल था, अब तुम एक बॉल को, तुमको पता है कि हम अगर फेंकेंगे तो वो नाली में ही जाना है, मैं अगर फेंकूंगा उसे तो उसे नाली में ही जाना है, तो मैं उसे फेंकूंगा ही क्यों? मान लो मुझे चांस है 90% नाली में जाना है, 10% नाली में नहीं जाना है, मैं उसे फेंकूंगा ही नहीं, वो मैं बॉल कंजर्व करके रख लूंगा, है ना? उस साइकोलॉजी से काम करो। पहला, ग्रीड, नॉट ऑलवेज ग्रीड विंस, ग्रीड कभी नहीं जीतता है, ठीक है, तुम्हें हमेशा कोशिश करना है। तुम अगर लेट भी ट्रेड में एंटर किए हो, इफ इट गिव्स यू 1:1,
देन यू शुड टेक, क्योंकि वो जो मूवमेंट हो रखा है वो पहले ही हो रखा है। जो मूवमेंट तुम्हारा है वो 1:3 यील्ड करने का पोटेंशियल है उसके अंदर, बट तुम उसको पोटेंशियल के अबव पुश कर रहे हो। बट मार्केट तुम्हारे पुश करने से नहीं चलता है ना, मार्केट चलता है मार्केट मेकर्स के हिसाब से। मार्केट मेकर्स जब 1:3 तुमको दे रहे हैं, तुमने लेट एंटर किया, ट्राई टू कैप्चर 1:1। अगर तुम 2% 1:2 में 1:3 में तुम 2% मूवमेंट हो चुका है, अगर तुम 1% मूवमेंट भी तुमको कैप्चर करना है, पहली बात तो उस ट्रेड को एंटर ही मत करना। इफ 2% हो चुका है मत करो एंटर, क्योंकि वहां पे तुम्हारा एसेट बहुत बड़ा हो जाएगा, उस हिसाब से तुम्हारा दिक्कत होगा। ठीक है, इफ यू वांट कि हाँ 1:2 है तुम्हारा, वन मूवमेंट हो चुका है, तुम्हारा 1 मूवमेंट बाकी है, तो वहाँ पे ले लो ट्रेड 1 मूवमेंट का, ले लो। अब तुम्हें अगर 1 मूवमेंट दे भी रहा है $50 या $25 कुछ भी दे रहा है, तुम उठा लो उसको। तुमको क्यों पुश करना उसका पोटेंशियल को, जबकि मार्केट तुम्हारे हिसाब से चलता ही नहीं है, तो तुम उसको क्यों पुश करोगे? तुम होते कौन हो पुश करने वाले, है ना? वो चीज़ हुआ इम्पेशंस की बात। पहले इम्पेशंस क्या है? हाँ भाई, अपने से फेक सिनेरियोज बना रहे हैं। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर खुद से बनाए जा रहे हो तुम। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 मिनट टाइम फ्रेम में मिल गया, अब मुझे एंटर कर जाना चाहिए फेयर वैल्यू गैप देख करके। नहीं, बी पेशेंस ना। मार्केट तुम्हें मूवमेंट देगी, नहीं देगी मत लो, नहीं दे रही मत लो मूवमेंट, सीधा नहीं दे रही मूवमेंट, ट्रेड मत लो। ठीक है, बेटर है तुम्हारा वो 1% तुम बचा करके रखो, ताकि तुम एटलीस्ट तुम्हारे पास अकाउंट तो है ना, वो 1% बचा करके रखो। मार्केट मूवमेंट नहीं दे रही है 1, तो अपने से सिनेरियोज मत क्रिएट करो ना, अपने से इम्पेशेंट होकर के तुम मत ट्रेड लो ना। क्यों ट्रेड लेना इम्पेशेंट होकर के? थर्ड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी सीखा, कि तुम्हारा बायस बहुत मैटर करता है, बायस मैटर्स अ लॉट। फोर्थ थिंग, ऑलवेज ट्राई टू टेक योर प्रॉफिट टू द नियरेस्ट लिक्विडिटी यू नो। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नियरेस्ट लिक्विडिटी या नियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप जो भी दिख रहा है तुमको कि हाँ वो बड़ा है, वो वहां से फिल करके मार्केट ऊपर जाएगा, ट्राई टू टेक दैट, ट्राई टू टेक दैट इवन इफ वन। अगर मान लो तुम 10 पिप्स का तुम ट्रेड ले रहे हो, 9 पिप्स तक मूवमेंट हो चुका है, तुम देख रहे हो वहां पे फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया है, देन छोड़ो उसको, तुम 9% 9 पिप्स निकाल लो, 1% 1 पिप्स छोड़ दो तुम। ठीक है, वैसा तुम रोबोट नहीं हो भाई। ठीक है, उस चक्कर में तुम अपना ट्रेड और अपना परसेंटेज और अपना मत बिगाड़ो। 1 पिप में कुछ नहीं होने वाला। 10% तुम $10 तुम नहीं लोगे वो भी चलेगा, बट इफ़ यू सिक्योर $90 तुम $10 मत लो, कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, वो जो बोलते रोबोटिक टाइप ट्रेड करो ना, ट्रेड विद दिस, नॉट विद टेक्निकल्स। टेक्निकल्स तो सब कर लेंगे भाई, टेक्निकल्स यूट्यूब में पड़ा हुआ है, बट यू हैव टू कीप योर माइंड काम। काम रखो ना, दिमाग को शांत रखो, हो जाएगा। ठीक है, थर्ड थिंग कि तुम 1 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मत लो भाई, मत लो ट्रेड 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम में तुम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ट्रेड लोगे, तुम जाओगे, खत्म ही होगा तुम्हारा। ठीक है, मत लो। और तुम ट्राई करो ना 3 मिनट टाइम फ्रेम में, ट्राई करो 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम मैं बोलूँगा मत लो, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें क्या है ना, तुम्हारा मूवमेंट हो जाता है उस समय। तो 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करो ना, 3 मिनट टाइम फ्रेम में तुम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करो, बाकी फेयर वैल्यू गैप तुम 1 मिनट टाइम फ्रेम में यूज़ करो। आराम से ट्रेड आएगा भाई, आराम से झक मार के ट्रेड आएगा तुम्हारे पे। ठीक है, बस इतना ही था। साइकोलॉजी, ऑलवेज कीप योर माइंड काम। मेडिटेशन करना, सुबह सुबह मेडिटेशन, ट्राई टू मेडिटेट। ठीक है, चलो मैं रखता हूँ। बाकी का अगर मैं तुम्हें पोर्टफोलियो चाहिए वगैरह वगैरह, तो मैं पोर्टफोलियो चिपका दूंगा, कोई बड़ा बात नहीं है। बाय।